Hello, my adorable and cheerful children. How are you all? Welcome back to another super cool, super amazing, super informative biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Yes, so we are learning very interesting topic, right? Inheritance and variation. Last class, I had asked you to write the statements, right? Law of inheritance. There are 3 laws given by Mendel. I had asked you to just practice it once by writing it. How many of you have done it? How many of you have done it? Please raise your hand, those who did it. Zaid has done, Samiksha has done. Okay, others? Manjari has done. Ashlesha has done. Others? Rushi, Sakshi, Samya, Sara, Shreyal, Shrusti, Shruti, Shrutika, Sonam has done. Others? Munshi, Setu, Jim. Yeah. Very good afternoon, everyone. Very good afternoon. So those who could not do it, please do it today. Okay? Yes? There is a reason why I am telling you to write it once. It is required. If it was not your boards class, I would have never told you to practice it. Okay? Since you are preparing for boards, you should have the practice of writing it just once. I know you all are very good students. You might be feeling that I will be able to write in the exam, but every good student also has to become best, right? So just write it once, practice it once. Yes? Yeah, Akshita. Very good afternoon. Good afternoon, everyone. Cool. So last class we had learned that. Yes, let me put my phone on silent mode. So many calls are coming. Right? This is lecture 5, inheritance and variation. Up to now we learned about how Mendel used the term factor for the gene. Then how he used. Acha, you should answer it. Okay? I am asking you answer. Intragenic interaction. दीपाली is asking in test first chapter आएगा क्या? हाँ दीपाली, क्यों नहीं आएगा first chapter? First chapter आएगा. Schedule जहाँ लिखा है ना, schedule में आपके portion भी लिखे हैं टेस्ट के, ठीक है? जहाँ पे आपका टेस्ट का डेट है, वहाँ पे आपका टेस्ट का schedule भी लिखा है और syllabus भी लिखा है, ठीक है? ओके? बहुत easy टेस्ट है एकदम, not to worry, ओके? तो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ. इसका मतलब हो गया एक फैक्टर में जो 2 अलील होते हैं उन दोनों अलील के बीच का इंटरैक्शन, है ना? एक फैक्टर में जो 2 अलील होते हैं उन दोनों के अलील के बीच में इंटरैक्शन. ओके? यस. अब पहला एग्जाम्पल हम सीखेंगे. ये तो पता है आप लोगों को ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? इनका फिनोटाइप डिफरेंट होगा, इनका जीनोटाइप सेम होगा. इनका जीनोटाइप सेम होगा लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट होगा, ठीक है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आई एम नॉट राइटिंग इट कंप्लीटली. आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो हमने सीखा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. both the alleles of the gene cannot express completely, है ना? कोई भी completely express नहीं होगा, ठीक है? आप एग्जाम्पल देखते हैं. हमने डेफिनेशन तो सीखा था कल भी कि both the allele of the gene cannot express completely. दोनों थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, राइट? सो both the alleles of the gene cannot express completely. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्लांट है. कौन सा प्लांट है? एक फ्लावर का प्लांट है,
है ना। उस फ्लावर प्लांट में ये देखा जाता है फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। एक प्लांट है उसका नाम है मिराबिलीज जल्पा, मिराबिलीज जल्पा। इसको हम किस नाम से जानते हैं पता है? इसको 4 o'clock प्लांट से भी जानते हैं। यस श्रुति, ऑसम। इसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लावर आता है ना इवनिंग टाइम पे आता है 4 o'clock, तो हम इनको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, मिराबिलीज जल्पा। तो इसमें मेंडल के जो प्रोसेस थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, एक्सेप्शन था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कैसे था एक्सेप्शन? उन्होंने क्या लिया, आर प्लांट लिया और स्मॉल आर लिया। कैपिटल आर रेड कलर के लिए था, रेड फ्लावर के लिए था, और स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर के लिए था, ठीक है। ये उनके पेरेंट्स हो गए, पेरेंट वाला जेनरेशन, है ना। इसका गैमेट बनने का सिर्फ एक ही चांस है ना कि कैपिटल आर आएगा। इसके गैमेट हमेशा स्मॉल आर आएंगे, है कि नहीं। अब आप इनको क्रॉस करा दो गैमेट को, तो इनसे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 प्रोजेनी यही होगा ना, F1 प्रोजेनी। लेकिन अगर ये मेंडल को फॉलो करता तो ये कैसा दिखना चाहिए, रेड। लेकिन ये दिखता कैसा है, आप जब ड्राइंग करते होगे ना, व्हेन यू ड्रॉ समथिंग, अगर आपके पास पिंक कलर नहीं है तो आप पिंक कलर बना सकते हो। कैसे, रेड और व्हाइट को मिक्स करके। यहाँ पे भी रेड कलर और व्हाइट कलर मिक्स हो जाएगा, और F1 प्रोजेनी में आपका जो फ्लावर का कलर होगा वो पिंक होगा, ना ही रेड ना ही व्हाइट, इट विल बी पिंक। इनका फिनोटाइप चेंज हो गया या नहीं हो गया? जीनोटाइप तो अभी भी वैसे ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। हाँ रितिका, करेक्ट, यस यस रितिका, करेक्ट, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक। अगर आप इसका सेल्फिंग करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फिंग करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे F2 प्रोजेनी में। सेम जैसा मेंडल ने किया वैसा ही। क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो आप देख लो, ये कैसा कलर देगा आपको, रेड कलर। ये कैसा कलर देगा आपको, देखो आप, जब दोनों प्रेजेंट है तो दोनों सेम, दोनों ही कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो आपको क्या दिखाएगा, ये आपको कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। ये कौन सा कलर देगा, ये व्हाइट कलर देगा। तो बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, एक रेड हो गया, दो पिंक हो गया, और एक व्हाइट हो गया। तो देखो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम हुआ कि नहीं हुआ, द फिनोटिपिक रेशियो एंड द जीनोटिपिक रेशियो बोथ बिकेम सेम और नॉट, सेम हो गए ना। जब मेंडल फॉलो कर रहा था तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिख रहा था, है ना, 3:1 फिनोटाइप था। लेकिन देखो ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मेंडल का एक्सेप्शन था, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है ये। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि आपका अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है F1 जेनरेशन में, तो जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, है ना। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है लेकिन ये रेड कलर को शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं कि कभी कभी अलील इंटरैक्ट करते हैं और वो कुछ दूसरा ही फिनोटाइप देते हैं हमें, वो हमें कुछ दूसरा ही फिनोटाइप देते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए, दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होंगे, और दोनों इंटरैक्ट होके बोलेंगे ठीक है मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस होता हूँ, थोड़ा सा तुम भी एक्सप्रेस हो जाओ, तो दोनों मिक्स होके रेड और व्हाइट
पिंक कलर को दिखा दिए, ठीक है। यस, सो आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों ही सेम होगा। द जीनोटाइप and phenotype ratio both will be same. You can see that. जीनोटाइप तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो सेम होगा। फिनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1। फिनोटाइप भी 1:2:1। ठीक है, अभी किसको भी डाउट है यू कैन आस्क। रितिका इज सेइंग फिनोटाइप ऐसा नहीं रहेगा 3:1। हाँ रितिका, फिनोटाइप 3:1 नहीं रहेगा क्योंकि एक रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है ना। क्यों नहीं रहेगा, उसी का तो आंसर मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो पिंक हो गए ना। वही तो एक्सेप्शन है आपका कि आर और स्मॉल आर दोनों में इंटरैक्ट कर रहे हैं। आर और स्मॉल आर दोनों में इंटरैक्ट कर रहे हैं। दोनों कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं एंड वो रेड और व्हाइट को मिक्स करके पिंक कलर दिखा रहे हैं। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। ठीक है, ऐसा हर एक केस में नहीं होगा ऑब्वियसली। हर एक केस में अगर होता तो मेंडल का हम रूल पढ़ते ही नहीं, राइट। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि कैसे आपका जीन इंटरैक्ट करता है आपकी बॉडी में। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। नो वन हैज कंट्रोल ओवर इट। अगर आपका इसके ऊपर कंट्रोल होता है तो आप कैसे करते हो, वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हो, ठीक है। जीन थेरेपी होता है, हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। तो वो सबसे हम कुछ तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में ये चीज नहीं है। इट इज ऑल नेचुरली हैपनिंग। मियोसिस जब हो रहा है, वो कैसे डिवाइड करेंगे, वो कैसे सेग्रीगेट करेंगे, नो वन नोज दैट। हमें बस रिजल्ट दिखता है, और वो रिजल्ट क्या दिखता है, फिनोटाइप दिखता है। हम फिनोटाइप को देख पाते हैं, वो फिनोटाइप को देख के हम फिर स्टडी करते हैं उसके बारे में। ये वाला जो मिराबिलिस प्लांट था, हम इसको क्यों स्टडी किए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट था वो डिफरेंट आ रहा था मेंडल से। हमने उसके बारे में पढ़ा और हमने बोला नेचर में देयर आर सम प्लांट्स, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हम उनके बारे में अलग से पढ़ने लगे। ठीक है, समझ आया? यस, हाँ रितिका, करेक्ट। तो एक एग्जाम्पल हमने सीख लिया। अब दूसरा हम सीखेंगे कोडोमिनेंस। एनीवन हैज एनी डाउट कि क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? प्लीज आस्क, अगर किसी को डाउट है तो। कोडोमिनेंस वी विल स्टडी, ठीक है। चलो, कोडोमिनेंस। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तो शालिनी मैम इज हियर, ठीक है, आप पूछ सकते हैं उनसे, शी विल हेल्प यू। ओके, ठीक है। हमने कोडोमिनेंस भी सीखा है कल। को मतलब साथ साथ, है ना। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, अगर फॉर एग्जांपल ए और बी में लिखती हूँ, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल। अगर अलील्स प्रेजेंट है, अगर अलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसी जीन का, कौन से जीन का, आई जीन। जीन का नाम क्या है, आई जीन। आई जीन के डिफरेंट डिफरेंट अलील होते हैं, पता है आपको? ए अलील, बी अलील, ओ अलील, ए बी ओ, ठीक है, समझ आया? तो आई जीन के डिफरेंट अलील होते हैं। मान लो हमने आई जीन का 2 अलील लिया, कौन सा लिया, ए और बी लिया, तो ए और बी लिख दिया हमने, एक जीन का 2 अलील लिख दिया। अब ये दोनों जो अलील है, इनमें वो पावर है, they have that ability that both of them will get equally expressed, both of them will get equally expressed। तो अगर किसी के बॉडी में आई ए और आई बी दोनों हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है,
उनका ब्लड ग्रुप AB होता है। ठीक है, समझ आया? तो कोडोमिनेंस का मतलब ऐसा होता है कि दोनों ही अलील कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे खुद को। बोथ द अलील ऑफ द जीन एक्सप्रेस themselves completely. What is codominance? When both the allele of a gene express completely. For example, human blood group AB, वो क्या शो करता है? कोडोमिनेंस। ठीक है, उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल सीख सकते हैं कोडोमिनेंस का। कोट कलर इन, ये पहला एग्जाम्पल हमने सीख लिया। दूसरा, कोट कलर इन कैटल, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था। कोट कलर इन कैटल, है ना, मतलब उनके स्किन का कलर, कोट कलर इन कैटल। अगर मान लो कोई कैटल है, उसका रेड कलर का स्किन था, एक और कैटल है उसका व्हाइट कलर का स्किन है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट, मान लो रेड को मैं R से डिनोट कर रही हूँ, तो मैं R से डिनोट करूंगी। अनुष ने कोई डेफिनेशन लिखा है क्या? हाँ अनुष, करेक्ट है, लेकिन आपको इसको ऐड करना है। आपको पहला स्टेटमेंट यही लिखना है, बोथ द allele of the gene express completely, they are neither dominant nor recessive, like that you can explain। ठीक है, तो इससे आपका R आ जाएगा। कैपिटल होगा, उसमें दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, मतलब उनके स्किन में रेड पैच भी होगा और उनके स्किन में व्हाइट पैच भी होगा। ठीक है, उनके स्किन में दोनों ही कलर होगा, रेड भी होगा व्हाइट भी होगा। समझ आ रहा है कोडोमिनेंस का मतलब? दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, कोई मिक्सिंग नहीं है। व्हाट इज कोडोमिनेंस? when both the allele of a gene express themselves completely, when both the allele of a gene express themselves completely. For example, coat color in cattle, for example AB blood group। ठीक है, शुभम और रिपीट AB ब्लड ग्रुप। देखो, अगर इसको मैं डिटेल में समझा देती हूँ, ठीक है, अच्छे से समझा देती हूँ। मान लो आपका ब्लड ग्रुप क्या है शुभम? व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? क्या है ब्लड ग्रुप का आपका, पता है क्या? नहीं पता? स्कूल में आई कार्ड में लिखना होता है ना, ओ है आपका ब्लड ग्रुप। ऑसम, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, इसके बाद मैं बी पॉजिटिव का करूंगी, दीपाली, अनुष सबका बी पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो ओ, शुभम का ब्लड ग्रुप ओ है। क्यों ओ है? ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है। आरबीसी मतलब सेल ना, रेड ब्लड सेल, और ये आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो अगर आपका एंटीजन आईओ है, अगर आपका जो आई जीन है, आई जीन का मैंने बताया कितने अलील होते हैं? 3 अलील होते हैं, ए बी और ओ। आई जीन के कितने अलील होते हैं? 3 अलील होते हैं, ए बी और ओ। अगर जीन है तो एक बार में 2 अलील होंगे, ठीक है, जीन है तो एक बार में 2 अलील होंगे किसी भी बॉडी में। टू अलील फॉर अ जीन,
वन टाइम यू कैन राइट ओनली 2 अलील फॉर अ जीन। तो इसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं ना। मान लो शुभम, शुभम का ब्लड ग्रुप अगर O है तो उनका कौन सा कॉम्बिनेशन है? IO IO। उनके अलील का कॉम्बिनेशन क्या है? IO IO। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप B था तो उनके अलील का कॉम्बिनेशन हो सकता है IB IB या फिर IB IO। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उनका अलील का कॉम्बिनेशन होगा IA IB। ठीक है, तभी उनका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? AB, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये समझ आया ना कि आई जीन के 3 अलील होते हैं, लेकिन एक सिंगल बॉडी में 2 ही अलील पाए जाएंगे। किसी भी जीन का 2 ही अलील पाए जाएंगे। तो हमने पॉसिबिलिटीज निकाला। ठीक है, आप देखो ब्लड ग्रुप में बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। जब भी IB और IO है, देखो जब भी IB और IO है, मैंने बोला कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? B होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? B होगा। ठीक है, 1 by 1। ओके धनेश्वरी, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। 1 by 1 वी विल डू। इसका ब्लड ग्रुप B है। अभी ध्यान से सोचो, इसका ब्लड ग्रुप B है मतलब कौन सा अलील डोमिनेंट है? B डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है? सोचो, आंसर करो मुझे। है ना, सबने आंसर करेक्ट किया, श्रुति, बिंसी, रितिका, तेजू। B अलील डोमिनेंट है। जब IB और IO था तो B अलील डोमिनेंट था। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है? कर रहा है या नहीं? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, जब 2 डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया। अभी AB ब्लड ग्रुप में देखो आप, जब IA और IB है, जब IA और IB है तो क्या होगा? जब IA और IB है, ब्लड ग्रुप क्या है? देखो AB है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों अलील प्रेजेंट थे, जब ये दोनों अलील प्रेजेंट थे, ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुए। मतलब ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं किया, ये क्या फॉलो किया? यस अनुष, इसने कोडोमिनेंस को फॉलो किया। ठीक है, यस। अभी ये और कंडीशन देखो, IA IO, इसका क्या ब्लड ग्रुप होगा? IA IO A होगा, सबको पता है। तो मेरे को ये बताओ, इन दोनों में कौन डोमिनेंट है? A डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है? A डोमिनेंट है। मतलब ये फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है। यस और नो? यस। अब अगर किसी का अलील बॉडी में IA और IA है, किसी के RBC पे IA और IA है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑब्वियसली A होगा। अगर IB और IB है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पक्का ये B होगा। अब मुझे ये बताओ, जब किसी का ब्लड ग्रुप O होना है, किसी के ब्लड ग्रुप को O होना है, तो उसको कौन से कंडीशन में होना पड़ेगा? होमोजाइगस और नॉट? होमोजाइगस होना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि हमने देखा जब AO था, A डोमिनेंट था O पे, मतलब O रिसेसिव है। जब B और O था, B डोमिनेंट था O पे, मतलब O फिर से रिसेसिव है यहाँ पे। तो जब भी किसी का ब्लड ग्रुप O होना है तो उनका बॉडी में, उनके बॉडी में अलील क्या होगा? IO IO, तभी उनका ब्लड ग्रुप O हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप स्पेसिफिकली
ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस फॉलो करता है, सारे कॉम्बिनेशन कोडोमिनेंस फॉलो नहीं करते हैं। समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो करता है, सिर्फ ए बी कोडोमिनेंस को शो करता है। रितिका इज आस्किंग हाउ। आपको ये दिख रहा है राइट? जब ए और बी अलील प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि वो इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है ना खुद को, इसलिए वो सिर्फ कोडोमिनेंस को शो कर रहा है, राइट? अदर्स में देख लो, ए ओ ए है, बी ओ बी है, तो जितने दूसरे ब्लड ग्रुप है वो क्या फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? ओ आपका क्या है? रिसेसिव है। ओ आपका क्या है? रिसेसिव है, इसलिए ओ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है? यस तेजू, ए एंड बी ओवर पावरिंग ओ, ए और बी डोमिनेंट होते हैं ओ पे, ए और बी डोमिनेंट होते हैं ओ पे। जब भी ए के साथ ओ होगा ए एक्सप्रेस होगा, जब भी बी के साथ ओ होगा बी एक्सप्रेस होगा, और जब सिर्फ ओ होगा तभी आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है? तो आपका ब्लड ग्रुप बहुत सारी चीजों को दिखाता है, कोडोमिनेंस दिखाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है? ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी क्या दिखाते हैं? डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप ए ओ के ऊपर डोमिनेंट होगा और अलील बी, अलील ए डोमिनेंट होगा ओ पे, अलील बी भी डोमिनेंट होगा ओ पे, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिखाते हैं, ठीक है? अब एक और चीज देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या था? तीसरा एग्जाम्पल इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का मल्टीपल एलेलिज्म था या नहीं था? मल्टीपल एलेलिज्म, आप देखो, हम जानते हैं एक जीन के दो अलील होते हैं, बट आप देखो एक ही जीन है, बट इसके कितने अलील है? 3 अलील है या नहीं? एक ही जीन है लेकिन इसके कितने अलील है? 3 अलील है। कितने अलील है? 3 अलील है, जिसमें ए और बी ओ पे डोमिनेंट होता है, ए और बी ओ पे डोमिनेंट होता है। ए और बी जब साथ में होंगे तो दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। ए और बी जब साथ में होंगे दोनों ही इक्वली डोमिनेंट होंगे और वो को डोमिनेंस को शो करेंगे। समझ आया धनेश्वरी? ओ आपका रिसेसिव है, ओ आपका रिसेसिव है, ठीक है? ओके, अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ये भी समझ आ गया ना मल्टीपल एलेलिज्म? तीसरा मैं समझा देती हूँ पहले, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, तो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल तो आपका ब्लड ग्रुप ही हो गया, है ना? ब्लड ग्रुप, when one gene has more than 2 allele, when one gene has more than 2 allele, तो क्या है वो? मल्टीपल एलेलिज्म। फॉर एग्जांपल आई जीन has 3 allele, क्या क्या है? A allele, B allele, O allele। समझ आया? ये हमने सीख लिया इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, उसी के साथ हमने ब्लड ग्रुप भी सीख लिया, ठीक है? अब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा जब मैं पढ़ा रही थी तो RH के बारे में, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव मतलब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, O पॉजिटिव मतलब नहीं रहमानी, ओ आपका सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, O इज ओनली रिसेसिव कैरेक्टर, O रिसेसिव एलील है, तभी तो जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे, जब तक आई ओ नहीं होगा तब तक आपको O ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा। आपको O ब्लड ग्रुप होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। खुशबू, ओके खुशबू, आपको O ब्लड ग्रुप होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, क्योंकि वो रिसेसिव है। समझ आया? हाँ रितिका, मल्टीपल एलिज्म को शो कर रहा है ना, क्योंकि 3 अलील है आई जीन के लिए, राइट? अब हम कुछ और सीखने वाले हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है
और नेगेटिव कैसे होते हैं, सीखे? कैन वी प्लीज क्लिक ऑन यस अगर मुझे चाहते हो आप मैं आगे बढ़ूं। हाँ चलो ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव कैसे होता है। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। हाँ यू नो दिस ना, वेरी गुड रितिका। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो, मैं उनको जल्दी से बता देती हूँ। ओके हाँ यस श्रुति करेक्ट। तो हम बात कर रहे थे आरबीसी की। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे मान लो, आप बताना कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है? जिसको जिसको पता है वो भी बताएंगे और जिनको जिनको कॉन्सेप्ट अभी समझ आया है आप भी बताना, ठीक है? मान लो एंटीजन ए है, मान लो एंटीजन बी है और एक और एंटीजन है RH। मेरे को ये बताओ इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। क्यों? तो ये समझ तो आ गया होगा। किसी भी आरबीसी में कोई भी इंसान जिसके आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। मान लो किसी और का बॉडी लिया हमने, उसका आरबीसी लिया, रेड ब्लड सेल, उसके बॉडी में मान लो A एंटीजन है, B एंटीजन है और RH एंटीजन नहीं है। आप बताओ इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। AB नेगेटिव, है ना? इस तरह से हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? यस। तो इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल डोनर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब मुझे आप ये बताओ आप क्या चाहते हो? Whatever you want that I'm gonna do। मैं पूरा एक्सप्लेन करूं कि कैसे यूनिवर्सल डोनर है वो ब्लड ग्रुप, और शुड आई जस्ट टेल यू कि दिस इज द यूनिवर्सल डोनर? फॉर एग्जाम्पल विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर O। अब मेरे को ये बताओ O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है? Ritika has answered it correct. Teju has answered it correct. नेगेटिव रोशनी हैज आंसर इट करेक्ट। बहुत लोगों ने पॉजिटिव बोला, बहुत लोगों ने नेगेटिव बोला। पता है आंसर क्या है? अनुष ने करेक्ट आंसर दिया, दीक्षा ने गलत, समृद्धि ने एक्सप्लेनेशन मांगा है। ठीक है चलो, तो यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है, ठीक है? ओ नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? उनके पास अलील क्या है? IO। IO नेगेटिव का मतलब RH नहीं है, नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अदरवाइज समझ नहीं आएगा। कूल? देयर इज अ ह्यूमन बीइंग जिसको ब्लड चाहिए, द पर्सन नीड्स ब्लड, इसको ब्लड चाहिए, ठीक है? मैंने बोला कि यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, मतलब उस इंसान का कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, उस इंसान का कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, इसका कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, आप इसको O नेगेटिव दे सकते हो। आपको जरूरत नहीं है उसका ब्लड ग्रुप मैच कराने की, आपको जरूरत नहीं है उनका ब्लड ग्रुप मैच कराने की। मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए और आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O नेगेटिव है। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड तुरंत देना है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि आई कैन गिव माई ब्लड, बिकॉज आपका ब्लड ग्रुप क्या था? O नेगेटिव। तो जरूरत ही नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करने की, अगर आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, आप किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो O है ना, O को 0 से कंपेयर कर दो।
ओ को किससे कंपेयर कर दो, 0 से। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो जब ओ ब्लड ग्रुप जा रहा है, कौन सा, नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव मतलब उसमें कौन सा एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है। तो जब भी ओ नेगेटिव जाता है किसी भी बॉडी में, तो इस बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं जाता है, इस बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं जाता है। ठीक है, इस बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं जाता है जब ओ नेगेटिव जाता है, क्योंकि उसमें RH तो है नहीं, RH ऑलरेडी नहीं है। और मैंने क्या बोला, जब IO है मतलब कुछ भी नहीं है, जब IO है मतलब कुछ नहीं है। तो आप बॉडी में दे क्या रहे हो, सिर्फ ब्लड दे रहे हो, ऐसा RBC दे रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा RBC दे रहे हो जिसमें कुछ नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। और अगर एंटीजन नहीं है, आपको पता होगा जब आपके बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है, सुना होगा ना आपने पैथोजन, फॉरेन बॉडी, जब बाहर से कोई पैथोजन, जब बाहर से कोई एंटीजन आता है तो आपका बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, आपका बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो इमेजिन करो आप एक सिनेरियो जिसमें एक इंसान ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया। ओ नेगेटिव का मतलब इसने कोई भी एंटीजन नहीं दिया। जब भी ओ होगा कोई एंटीजन नहीं है, और जब नेगेटिव है मतलब RH एंटीजन भी नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं गया बॉडी में, तो क्या ये बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा? थिंक, when there is no antigen in the body, will the body create any antibody? नहीं। तो इंसान क्या होगा, एकदम खुश, हैप्पीली, वो ब्लड भी मिल जाएगा उसको और इंसान सरवाइव भी कर जाएगा, सेफ भी रहेगा, राइट? तो एंटीबॉडी तो बनाएगा ही नहीं इसका बॉडी, उसके ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, समझ आया सबको? इसलिए हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अभी देख लो, लेट्स से एक एग्जांपल में ओ पॉजिटिव का लेती हूँ। ओ पॉजिटिव, तो IO RH, आप कौन सा दे रहे हो, ब्लड। RBC में क्या प्रेजेंट है, IO RH एंटीजन। नाउ मान लो कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को आपको ब्लड देना है, आपको पेशेंट का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, ठीक है, आपने ये ब्लड दे दिया उसको, क्या होगा, मान लो इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब इसके बॉडी में RH नहीं था, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, मान लो, मतलब इसके बॉडी में RH नहीं था, एंटीजन नहीं था। आपने क्या किया, इसके बॉडी में RH डाल दिया। एकदम ध्यान से सुनो, अभी नो क्वेश्चंस, अभी मेरे को पूरा समझाने दो, फिर जो भी डाउट होगा आप पूछना, ठीक है? RH बॉडी के अंदर डाल दिया। अगर RH बॉडी के अंदर डाल दिया तो इस बॉडी के लिए RH फॉरेन बॉडी हुआ कि नहीं हुआ? इसके पास खुद का RH नहीं था, इसने बाहर से RH ले लिया, तो इस बॉडी के लिए RH फॉरेन बॉडी हुआ, राइट? तो या विदेशी, तो बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। जब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा तो बॉडी क्या करने वाला है, जो भी ब्लड आपने डाला, जो भी ब्लड आपने इस बॉडी को डाला, वो सबको क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है,
एग्लूटिनेशन। समझ आया सबको कि हम कैसे ब्लड ग्रुप देते हैं, कैसे डोनेट करते हैं? तो ओ नेगेटिव क्यों देते हैं? क्योंकि आप आंख बंद करके ओ नेगेटिव दे सकते हो, क्योंकि ओ नेगेटिव में कुछ नहीं है, बॉडी को कुछ भी नहीं मिलेगा फॉरेन पार्टिकल, तो बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब मान लो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? मतलब आंख बंद करके वो इंसान किसी से भी ब्लड ले सकता है। आंख बंद करके वो इंसान किसी से भी ब्लड ले सकता है। यस, एवरीवन नोज इट, है ना? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। He can just close his eyes and he can get all types of blood. AB. Why AB? मतलब देखो, AB का मतलब उसके पास A एंटीजन आ गया, उसके पास B ऑलरेडी प्रेजेंट है, और पॉजिटिव दे दो तो उसके पास RH भी प्रेजेंट है। मतलब ये इंसान के पास A भी प्रेजेंट है RBC में, B भी प्रेजेंट है और RH भी प्रेजेंट है। अब आप दे दो कुछ भी। अब आप मान लो A ब्लड ग्रुप डोनेट करो, इसको A ब्लड ग्रुप डोनेट करो, तो आप क्या दे रहे हो? A दे रहे हो ना? क्या दे रहे हो? A दे रहे हो। क्या ये A कभी इसके लिए फॉरेन बॉडी होगा? कभी इस इंसान के लिए फॉरेन बॉडी होगा? थिंक, क्या ये A ब्लड ग्रुप कभी भी इस इंसान के लिए फॉरेन बॉडी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पहले से A था। आप सिमिलरली सोच लो, B अगर देते हो, क्या फॉरेन बॉडी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो भगवान जी ने पहले से ही B दिया है ना? मान लो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे रहे हो। B नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? सिर्फ B दे रहे हो, सिर्फ B दे रहे हो, तब भी इसके पास B है या नहीं है? है, राइट। मान लो O ब्लड ग्रुप दे रहे हो। कौन सा ब्लड ग्रुप दे रहे हो? O। तो O का तो मतलब आपको पता ही है, O का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगर पॉजिटिव है मतलब आप सिर्फ RH दे रहे हो, O पॉजिटिव मतलब आप RH दे रहे हो। तो आप देख लो, पेशेंट के अंदर पहले से RH प्रेजेंट है, तो क्या ये फॉरेन बॉडी है इसके लिए? नहीं है। सबको समझ आया हम कैसे डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कृतिका, समझ आया क्या? Yes or no? If everyone has understood, please click on yes. अपना अनोश एकदम यो करता है, राइट? यस, सबको समझ आ गया ना? ठीक है, चलो, वंडरफुल। तो दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप। उस तरह से हम डोनर को चूज करते हैं और एक्सेप्टर को यूज करते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब आप सबको समझ आ गया होगा ना? धनेश्वरी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया? आपका कोई क्वेश्चन था ना? डिड यू गेट द आंसर? आप खुद से फाइंड आउट करो उस क्वेश्चन का आंसर। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, उसको यूज करो और फाइंड आउट करो आंसर, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यस, हाँ। सो विद दिस वी हैव लर्न्ड इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। अब हम क्या सीखेंगे? कुछ सीखना नहीं है। इंटरजेनिक इंटरैक्शन आपके सिलेबस में आपको बस क्या जानना है? कुछ एग्जाम्पल्स जानने हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरजेनिक के पहले एक और एग्जाम्पल मैं सिखा दूं आपको। हमने तीसरा क्या सीखा था? मल्टीपल एलिलिज्म, राइट? चौथा सीख जाते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, अब देखो इसमें क्या एक्सेप्शन है। अभी तक हमने क्या सीखा था? एक फैक्टर। एक फैक्टर का मतलब, अभी के लैंग्वेज में अगर बोलूं, एक फैक्टर का मतलब एक जीन, राइट? एक फैक्टर का मतलब एक जीन, ओके, एक जीन, है ना? तो एक फैक्टर का मतलब एक जीन। इनका मतलब क्या हुआ? ये कितने कैरेक्टर्स देंगे आपको? कितने कैरेक्टर्स देंगे? एक जीन मतलब कितने कैरेक्टर्स? एक या दो या तीन, कितने कैरेक्टर?
सोचो, एक जीन से कितने कैरेक्टर? एक कैरेक्टर, राइट? एक जीन से एक कैरेक्टर, राइट? जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है आपका, शेप एक कैरेक्टर है आपका। हमने ये सीखा था, एक जीन मतलब एक कैरेक्टर। फिर हमने कैरेक्टर के अंदर सीखा था हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं। हमने सीखा था ना कि एक कैरेक्टर में दो अलील हो सकते हैं, मतलब कोई लंबा और कोई छोटा। समझ में आया? एक जीन, एक फैक्टर, मतलब एक कैरेक्टर। कूल? यस बिंसी, यू कैन लर्न इट इन द इंट्राजेनिक ओनली। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मेंडल से एक्सेप्शन रखता है। मेंडल ने हमें क्या बताया था? मेंडल ने हमें क्या बताया था? एक जीन है, एक कैरेक्टर होगा। एक जीन मतलब एक कैरेक्टर। लेकिन इस केस में क्या होता है पता है? एक जीन आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकते हैं। एक जीन आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, वन जीन और वन फैक्टर should contribute one character, but if you get multiple characters from one gene, that condition is called as what? Pleiotropy. That is called as pleiotropy. ठीक है, आप इसको सीख सकते हो, एक अलग सा टॉपिक है ये। प्लियोट्रॉपी एक अलग सा टॉपिक है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो मेंडल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एक जीन एक कैरेक्टर, बट इसमें क्या है? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट आई सेड जस्ट नाउ? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एक जीन, कुछ बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोला, राइट? एक जीन से एक कैरेक्टर मिलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा जीन है, अगर कोई ऐसा जीन है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को दिखाए, if there is any gene which is showing you more than one character, that case is pleiotropy. That case is pleiotropy. अब समझ आया सबको? हाँ, यस समृद्धि, एकदम करेक्ट, परफेक्ट। समझ आया क्या? इसका मतलब क्या होता है? मतलब खुशबू, व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या होता है? हाँ अक्षता, when we get multiple characters from one gene. हाँ, अनुज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक ही क्रिकेटर है मान लो, अगर वो ऑलराउंडर है, देयर इज वन क्रिकेटर, मान लो कोई है, किसी का एग्जाम्पल ले लो। अभी कौन था जो अभी बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या, है ना? हार्दिक पांड्या मस्त बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, बैटिंग भी अच्छा करता है, फील्डिंग भी अच्छा ही करता है, राइट? तो हार्दिक पांड्या क्या है? एक ही इंसान है, बट बहुत सारे काम कर रहा है, राइट? सिमिलरली प्लियोट्रॉपी, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। समझ आया? थैंक यू मुंशी। मुंशी ने एक एग्जाम्पल दिया है, उसने बायोलॉजिकल एग्जाम्पल दिया है। प्लियोट्रॉपी का मतलब वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर। ये प्लियोट्रॉपी नहीं है। प्लियोट्रॉपी क्या है? वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल सीख लेते हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये होता क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपका ब्रेन वीक हो जाएगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आपकी स्किन में भी आपको दिखेंगे सिम्टम्स। तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे अगर किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो। डोंट आस्क मी व्हाट इज इट, ठीक है? मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? मैं आपको पढ़ाऊंगी,
ये होता क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया? सी खुशबू इज आस्किंग दैट व्हाट इज इट मैम, कैसे होता है? आई विल टीच यू, डोंट वरी। जब मैं डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी ना, आई विल टीच यू कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ठीक है? यस, या अनुष, कोई और एग्जाम्पल किसी को पता है क्या? कोई और एग्जाम्पल? सो मुंशी ने एक्सप्लेन किया है फिनाइल कीटोन्यूरिया को कि ये बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड आपके बॉडी में चेंज हो जाता है, ठीक है? एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, एक जीन चेंज हो जाता है, जिससे आपके बॉडी में फिनाइल एलेनिन स्टोर होने लगता है। सबको समझ आ गया राइट? एवरीवन अंडरस्टूड राइट? आई विल टीच यू, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आई विल टीच यू। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? अच्छा, पेशेंस से मेरे को एक क्वेश्चन पूछूं? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, दे ऑल आर डिजीज। तो इनसे होता क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तो हम सोचते हैं एक ही जीन है, एक ही जीन में डिसऑर्डर हुआ है और उसकी वजह से हमें इतने सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तो हमने इसको किस में डाल दिया? प्लियोट्रॉपी में डाल दिया, ठीक है? यस, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो वी लर्न इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, ठीक है? इंटरजेनिक, कल हम इंटरजेनिक सीखेंगे। इंटरजेनिक में कुछ भी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स बस सीखने हैं हमें, उनको डिटेल में हमें नहीं सीखना है, ठीक है? डिटेल में आप जब नीट वगैरह की पढ़ाई करोगे ना, जब नीट, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है नीट में, अदरवाइज बोर्ड्स में बस आपको एग्जाम्पल्स जानने हैं, ठीक है? इंटरजेनिक इंटरैक्शन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझसे। इफ देयर इज एनी डाउट आई विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। इसके बाद कल हम सीखेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बॉवेरी एंड सटॉन ने दिया था, ठीक है? कल हम वो सीखेंगे। फिर एक लिंकेज टॉपिक है वो सीखेंगे, फिर जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो सीखेंगे, ठीक है? हाँ शुभम, एकदम सारा स्लाइड्स दिखा सकती हूँ मैं, नोट्स में भी अपलोडेड है, ठीक है? आज के स्लाइड्स ये है, स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, ठीक है? हमने ऐसे सीखा था, मेंडल के बारे में पढ़ा, फिर नियो मेंडलिज्म आया, तो इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शन हुआ, ये सारी चीजें है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह, आप देखो। मैम एक्चुअली आपने बोला कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ लेकिन नेगेटिव, हाँ, तो सबको ओ पॉजिटिव भी चलता है ना, एक्सेप्ट ओ नेगेटिव। तो आई मीन मतलब अब ए पॉजिटिव वाले का समझो एक्सीडेंट हो गया और उसे ब्लड लग रहा है, तो ए पॉजिटिव अरेंज नहीं हो पाया, तो ओ नेगेटिव भी मुश्किल से मिलता है, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता। तो हम ओ पॉजिटिव देंगे तो उसमें ओ पॉजिटिव का जो RH है वो जाएगा, फिर वो जो ए पॉजिटिव वाले हैं ना वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। मेरे को समझ, अच्छा मेरे को ये बताओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या था? आप बताओ। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव। आप उसको कौन सा ब्लड डोनेट कर रहे हो? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका डाउट क्या है? आप दे सकते हो ए पॉजिटिव को, आप ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकते हो। आपका डाउट क्या है बताओ? बट मैम जो ओ पॉजिटिव में RH प्रेजेंट है ना, हाँ, उसके अगेंस्ट ए पॉजिटिव वाले एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे क्या? क्यों बनाएंगे? ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ आप सोचो। ए पॉजिटिव का मतलब यही हुआ ना कि उनके पास RH ऑलरेडी है। ए पॉजिटिव का मतलब यही हुआ ना कि उनके पास ए प्रेजेंट है और RH भी प्रेजेंट है, तभी ब्लड ग्रुप ए उनके पास नहीं RH है। अगर आप ओ पॉजिटिव देते हो तो RH दे रहे हो ना, RH उनके बॉडी में ऑलरेडी है,
तो कैसे वो एंटीबॉडी बनाएगा? आप सोचो एक बार फिर से। नहीं मैम, मतलब RH सेम है दोनों। पूछो पूछो, लेकिन हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो, लेकिन बोलो। लेकिन अगर हमने ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव दिया तो ए पॉजिटिव जो है वो एंटीबॉडीज तो बनाएंगे ही ना। हाँ तो फिर ओ के केस बिल्कुल में ऐसे बनाएंगे, क्यों नहीं होता? ओ पॉजिटिव के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने तो बोला O के पास कोई एंटीजन नहीं है। जब भी O जा रहा है, O के पास कोई एंटीजन नहीं है। O को मैंने बोला ना आपको जीरो के जैसा कंसिडर कर लेना। O के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए आप O दे सकते हो। B पॉजिटिव नहीं दे सकते हो क्योंकि B एक एंटीजन है, O एक एंटीजन नहीं है। आप ऐसे कंसिडर करोगे, O एक एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई फॉरेन बॉडी उनकी बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए कोई एंटीबॉडी उनकी बॉडी में नहीं बनता है। लेकिन आपने वो तो ओ नेगेटिव का एग्जांपल दिया ना, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ पॉजिटिव में भी कोई एंटीजन नहीं होता? भाई साहब, O पॉजिटिव में RH एंटीजन होता है धनेश्वरी। आप O पॉजिटिव वाले, जितने भी पॉजिटिव वाले ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप, आप पॉजिटिव वाले को दे सकते हो। आप A पॉजिटिव को A पॉजिटिव दे सकते हो, आप A पॉजिटिव को O पॉजिटिव भी दे सकते हो। सिमिलरली आप B पॉजिटिव को B पॉजिटिव दे सकते हो, और आप B पॉजिटिव को O पॉजिटिव भी दे सकते हो, आप O नेगेटिव भी दे सकते हो। सिमिलरली A पॉजिटिव को आप A पॉजिटिव दे सकते हो, ठीक है, O पॉजिटिव दे सकते हो, O नेगेटिव दे सकते हो, A नेगेटिव दे सकते हो, ये सब दे सकते हो, बट B नहीं दे सकते। B नहीं दे सकते, अगर B दोगे तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होगा। आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ। टेबल में क्या करोगे आप? एवरीवन डू दिस, ओके। उस टेबल में आप सारे ब्लड ग्रुप लिख लो पहले, ठीक है। A B A B, ये पॉजिटिव हो गए। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ठीक है। O पॉजिटिव, सारे ब्लड ग्रुप लिख लो। और फिर राइट साइड में लिखो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आप डोनेट कर सकते हो। समझ आया? सारे ब्लड ग्रुप लिख लो एक पेशेंट का, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। कौन कौन से ब्लड ग्रुप आप दे सकते हो, आज आप सोचो उसके बारे में और लिखो। कल कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछो मुझसे, ठीक है। और मैम आई ओ और आई ए है, तो फिर डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा ए ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैम एक्चुअली मेरे मम्मा का ओ पॉजिटिव है और पापा का ए पॉजिटिव, तो मुझ में डोमिनेंट कैरेक्टर ओ कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है धनेश्वरी। ठीक है, मैं अभी बताऊं? शुड आई टेल यू नाउ? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो। तो आपको जो हम पढ़ रहे हैं ना ये चैप्टर, इनहेरिटेंस, देखो आपके पापा का क्या ब्लड ग्रुप है? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, ठीक है। आपकी मम्मी का क्या ब्लड ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। मतलब सबके पास RH भी है ना। तो इससे जो गैमेट बनेगा, मेरे को बताओ गैमेट क्या होगा? दो चांसेस है कि नहीं, IA और IO। इसका गैमेट का क्या बनने का चांस है? IO, है ना। आप कॉम्बिनेशन बना लो इनका, हो सकता है IA IO फ्यूज हुआ होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता था, ठीक है। हो सकता है IO मैच हुआ होगा, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। समझ आया? समझ आया क्या? यस मैम। क्योंकि दो दो फॉर्म में है ना, हमेशा वो अकेला नहीं प्रेजेंट है, वो ऐसे प्रेजेंट है आपके मम्मी पापा के बॉडी में। गैमेट जब भी बनेगा वो सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद वो फ्यूज होते हैं। तो जब वो फ्यूज हो रहे हैं तो दो कॉम्बिनेशन है, ए के साथ ओ कंबाइन करेगा तो ए होगा, ओ के साथ ओ करेगा तो ओ होगा, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है। समझ आया? यस मैम। यस, गुड, वेलकम। चलो, और कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं?
प्रियंका ये क्या क्वेश्चन है? 11 में क्या है मतलब? नहीं समझ आया मुझे. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 1 में क्या है मतलब? कैन यू इलेबोरेट? So if you have any doubts, if Shalini ma'am, you are here. Shalini ma'am is here. Can you check? Yes, I'm there. हाँ मैम, कुछ बच्चे Yes, पूछ रहे हैं कि if they have doubts, can they ask you doubts? Yeah, sure, ma'am. They can ask. हाँ, so they can ask students. You can ask doubts from ma'am if you have any doubts. ठीक है? Ma'am has already shared her WhatsApp number, I guess. Right? So if you have any doubts, ma'am will help you out. You can ask her doubts. Okay, Munshi? So ma'am is there to help you. If you have not noted down ma'am's number, ma'am will send the number now also. Okay? Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Chalo, you all can save that number. Cool? Yes, please save this number. And ma'am, you can tell them a preferable time also. During what time they should ask doubts. Yeah, so that 2 to 6 p.m. anytime they can ask, ma'am. No problem. ठीक है. Afternoon, So, 2 p.m. After their class, they can ask 2 to 6 anytime. So I'll be replying them. ठीक है. Got it right? From 2 p.m. to 6 p.m. you can ask doubts from ma'am. She will help you. ठीक है? Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. चलो, ठीक है then. We'll end the class today here and we'll meet tomorrow then. ठीक है? चलो. Bye. Bye everyone. Take care.